Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS Agrawal Mathematics का चैप्टर 21 कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 21D सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 21D फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 1 में लेंथ 46 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट वी विल राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ वैल्यू ऑफ लेंथ इज 46 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम केवल 46 लिखेंगे मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। वी विल राइट हियर 25। और अगर लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में हो तो एरिया की यूनिट क्या हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 46 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट क्या आता है। तो यहाँ पर पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 का 0 3 कैरी, 5 4 जा 20 और ये 3 23। फिर 2 है, 2 टेंस प्लेस का नंबर तो यूनिट प्लेस में कुछ नहीं लिखेंगे। 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो 0 3 प्लस 2 5 9 प्लस 2 11 1150 और ये यूनिट क्या होगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड में दिया है लेंथ 9 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर। फर्स्ट वी विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो वैल्यू ऑफ लेंथ इज 9 मीटर, सो वी विल राइट हियर न्यूमेरिकल वैल्यू 9 मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ 6 मीटर। वी विल राइट हियर 6 and the product is written in unit meter square because length and breadth both are given in meter, so area will become in meter square. Now 9 6 ja 54 and here meter square. This is the area of given rectangle. Third, length of rectangle equal to 14.5 meter, breadth is 6.8 meter. So area of rectangle equal to length into breadth. Value of length is 14.5 meter, so we will write here 14.5 multiplied with 6.8 meter. We will write here 6.8 and the unit of product is meter square because both the values are given in meter. Now find the product of 14.5 and 6.8. First we will remove the decimal point. We will write these value without decimal point. 145 into 68. 8 5 जा 40 0 4 कैरी, 8 4 जा 32 32 प्लस 4 36 6 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11. Now tens place digit is 6, so we will cross it. Now 6 is multiplied with 6 5 ja 30, 0 is written here, 3 carry, 6 4 ja 24 plus 3 27 का 7 2 carry, 6 1 ja 6 plus 2 8 0 6 7 plus 1 8 8 plus 1 9. Now we place here decimal point. This was 14.5 and this was 6.8. Here one digit in decimal place and here one digit is decimal place, so there are two digits, so we will place decimal point before two digit from right side 1 2 here. 98.60 means 98.6 because 0 is meaningless, so we will write here 98.6 meter square. Product is 98.6 and unit is meter square. Here length is expressed in two units, meter and centimeter, and breadth is given in centimeter only, so we will write this length in either meter or either centimeter. So since breadth is given in centimeter, so we will write length also in centimeter. So 1 meter equal to 100 centimeter, that means 2 meter equal to 200 in meter. In centimeter 2 meter is written as 200 centimeter, and also 5 centimeter it is already in centimeter, so we will write here 200 plus 5 centimeter, 200 in place of 2 meter. Now value of this is
200 plus 5 centimeter is 205 centimeter. So length is 205 centimeter, breadth is 60 centimeter. Area of rectangle is length into breadth. So in place of length, we write here 205 multiplied with breadth. Breadth is 60 centimeter. So we'll write here 60. Now both the value in centimeter, so the unit of area is centimeter square. Now multiplying 205 and 60. For 0 we will write here 0. Now 6 5 ja 30. 0 is written, 3 is carry. 6 0 ja 0 or 3. 0 and 3 is 3. 6 2 ja 12. And unit is written as centimeter square. So area of the rectangle is 12,300 centimeter square. Length is 3.5 kilometer, breadth is 2 kilometer. So area of rectangle equal to length into breadth. So length is 3.5 and breadth is 2. Both are in kilometers, so is in kilometer square. Now 3.5 into 2. Twice of 3.5 is 7. We will write here 7 kilometer square. In this way we have completed question number 1. Let's solve question number 2. Question number 2. Find the area of a square plot of side 14 meter. The plot is in a square shaped. So first we will write side of the square plot is 14 meter. Therefore area of the square equal to area of any square is given as side into side. Side multiplied with side. So here side is given as 14 meter. So we will multiply 14 into 14 and the unit is meter square because side is given in meter. Now 14 into 14 196 and the unit is meter square, so we will write here meter square. Question number 3 is the top of a table measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 20 centimeter. Find its area in square meters. यहाँ पर एक टेबल टॉप है जिसका मेजर्स दिया हुआ लेंथ और ब्रेथ दी है, दैट मीन्स टेबल रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका एरिया हमें स्क्वायर मीटर्स में फाइंड करना है. यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों ही वैल्यू मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही यूनिट में एक्सप्रेस्ड हैं, बट हमें एरिया स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है. दस यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज कन्वर्टेड इन meters only. So first we will write here length of the top of table 2 meter 25 centimeter. So 2 meter, 2 is in meter and 25 centimeter is converted in meter, it becomes 0.25 meter. Now both the value are in meter, so we will write here meter. After adding this 2 plus 0.25 equal to 2.25 meter. How 25 centimeter is converted as 0.25? Since 100 centimeter equal to 1 meter, so 1 centimeter equal to 1 upon 100 meter. तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 को हमने 100 से डिवाइड किया. सिमिलरली 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में लिखना है तो 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे. वेरेवर देयर इज ए डिनोमिनेटर एज 100 वी प्लेस डेसिमल पॉइंट बिफोर 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड. सो 1 digit, 2 digit and we will place here point, and if whole part there is nothing, we will write here 0. So it becomes 0.25 meter. 25 centimeter equal to 0.25 meter. That's why we have written here 0.25 breadth. One meter 20 centimeter. So 1 is in meter, so 1 plus 20 centimeter is converted in meter, it becomes 0.20 meter. Adding both the value and we will write here meter. So after adding 1 plus 0.20 it becomes 1.20 meters. Now we have length
and breadth. Both are in meter. Therefore, area of the top of the table equal to length into breadth. Now, in place of length, we will write here 2.25. In place of breadth, we will write here 1.20. And unit of area will be meter square because both the values are given in meter. So when we multiply 2.25 with 1.20, तो पहले हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 को तो 0 0 0 आएगा. फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लेस खाली छोड़ देंगे या 0 लगा देंगे. 2 टेंस प्लेस का डिजिट है. अब 2 का मल्टीप्लाई 225 में करेंगे तो आएगा 450. तो 450 ऐसा लिखा जाएगा. फिर 100 प्लेस में है तो टेंस और वंस प्लेस में यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे. 1 का मल्टीप्लाई 225 में करेंगे तो 225 ही आएगा. अब इन्हें ऐड करेंगे 0 0 5 + 5 10 0 1 कैरी 1 + 4 5 + 2 7 और 2. अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा है 2 डिजिट के पहले और यहाँ पर 2 डिजिट के पहले लगा है, दैट मीन 4 डिजिट. तो प्रोडक्ट में भी 4 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट. तो 2.7000 हो जाएगा. और जब भी कोई नंबर डेसिमल में दिया हो तो डेसिमल प्लेस के मोस्ट राइट में अगर 00 हो तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती. ये हो जाएगा 2.7 मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. अ कारपेट इज 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर वाइड. फाइंड इट्स कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर. तो यहां पर एक कारपेट है जिसकी लेंथ दी है मीटर और सेंटीमीटर में और ब्रेथ दी है, विड्थ कहें या ब्रेथ कहें सेम ही चीज है, 80 सेंटीमीटर में. अब इस कारपेट का कॉस्ट फाइंड करना है जबकि इसका रेट दिया है. रेट दिया है ₹150 पर स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹150. तो हमें इस कारपेट का कॉस्ट क्या होगा वो फाइंड करना होगा. तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है, इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा कि कितने मीटर स्क्वायर कारपेट का एरिया है. तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि रेट हमें स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. आई सॉल्व करते हैं इसे. लेंथ ऑफ कारपेट 30 मीटर 75 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 30 is in meter, so 30 and 75 centimeter is in meter, it becomes 0.75. Both the values are in meter now. Now 30 plus 0.75 is 30.75 meter. Now the length is 30.75 meter. Similarly the breadth 80 centimeter. So in meter 80 is divided by 100 and becomes 0.80 meter. Therefore area of the carpet equal to length into breadth. Length is 30.75 meter and breadth is 0.80. So the unit of area is मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर. तो जो भी लिखना चाहे स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹150. Therefore, so here we have not calculated the product. The product is, when we multiply this, we get here 24.6 meter square. This is the area of the carpet. ये स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर सेम ही चीज है, कुछ भी लिख सकते हैं. मीटर स्क्वायर लिखना चाहे तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर लिखना चाहे तो स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं, सेम ही चीज है. Therefore, cost of, अब कारपेट का एरिया है 24.6 मीटर स्क्वायर, 24.6 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर. तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ₹150, तो 24.6 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हो जाएगा 150 का 24.6 टाइम्स.
1 स्क्वायर मीटर का जो भी कॉस्ट है उसका 24.6 टाइम्स कर देंगे, तो ये 24.6 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हो जाएगा। अब ये रुपए में है तो ये रुपए में ही लिखा जाएगा कॉस्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ वैल्यू आती है, आप रफ में सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 3690, और यहाँ रुपए लिखा है तो रुपए लिखना होगा। हेंस द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज रुपए 3690। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी envelopes कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 3 meter 24 centimeter by 1 meter 72 centimeter if each envelope requires a piece of paper of size 18 centimeter by 12 centimeter। यहां पर एक पेपर की शीट दी हुई है जिसका डायमेंशन दिया है, पेपर शीट का लेंथ दिया है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ दी है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। इससे कितने इन्वेलप बनाए जा सकते हैं? अगर हर एक इन्वेलप पेपर का साइज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि इस शीट ऑफ पेपर से ऐसे कितने इन्वेलप बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन्वेलप का एरिया निकाल लेंगे और पूरे पेपर शीट का एरिया निकाल लेंगे। फिर पेपर शीट के एरिया को डिवाइड कर देंगे इन्वेलप के लिए रिक्वायर पेपर के एरिया से। एक इन्वेलप बनाने के लिए जितना भी पेपर चाहिए उसका एरिया जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे हम शीट ऑफ पेपर के एरिया को, तो ये पता चल जाएगा कि उससे कितने इन्वेलप बनाए जा सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पेपर शीट का लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर, 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। अब इसे सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो 3 मीटर मीन्स 300 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 300 प्लस 3 मीटर की जगह 300 और 24 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो पेपर शीट की लेंथ आ जाएगी 324 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ इक्वल टू दिया है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस ये सेंटीमीटर में 72 लिखा हुआ है तो 72 एज इट इज लिखेंगे। ये दोनों ही वैल्यू को ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर में वैल्यू मिलेगी हमें 172 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ शीट ऑफ द पेपर इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है 324 सेंटीमीटर, तो 324 मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ 172, और दोनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में है तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 324 मल्टीप्लाइड विथ 172, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐड करेंगे तो 8, 8 प्लस 4 12 का 2 1 कैरी, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 प्लस 4 17 का 7 1 कैरी, पर 1 प्लस 2 5 और 2 प्लस 3 5, 55,728, 55,728 और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया जो हमारे पास शीट ऑफ पेपर है जिससे हमें छोटे छोटे एनवेलप कट आउट करने बनाने हैं। तो ये तो पूरे कंप्लीट पेपर का एरिया निकल आया है। अब हमें एक एनवेलप के लिए जो रिक्वायर्ड है पेपर उसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर लेंथ ऑफ पीस ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर 1 एनवेलप इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या होगी पेपर की 12 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ द पीस ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर 1 एनवेलप फाइंड करेंगे। तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 18 इंटू 12 सेंटीमीटर है तो ये एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कंप्लीट पेपर शीट का एरिया इतना है। जो अब एक एनवेलप के लिए जो पीस ऑफ पेपर चाहिए उसका एरिया इतना है। तो अगर कंप्लीट एरिया को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ एनवेलप कितने बनाए सकते हैं ये फाइंड हो जाएगा। नंबर ऑफ एनवेलप दैट कैन बी मेड इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द शीट, जो बड़ी सी शीट है उसका एरिया, और एक एनवेलप बनाने के लिए जो भी पेपर रिक्वायर्ड है उसका एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एनवेलप्स दैट कैन बी मेड इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द शीट ऑफ पेपर
अपॉन एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर वन एनवेलप। तो एरिया ऑफ द सीट 55,728 एंड अपॉन 216। अब यहां पर 216 से डिवाइड करेंगे 55,728। 216 टू जा 432, 7 में 2 माइनस होगा तो आएगा यहाँ पर 5, 5 में 3 गया 2, 5 में 4 गया 1, ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 2 नीचे आएगा। अब 216 5 जा 1080, अब माइनस करेंगे 2 में 0 गया 2, 5 में 8 जाएगा नहीं तो 5 यहाँ से बोरो लेगा 15 हो जाएगा, और 15 में 8 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पे 1 में 0 गया 1 और ये कैंसिल आउट। अब यहाँ ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो 8 बचा है तो 8 नीचे आएगा तो 1728 होगा। अब 216 8 जा होता है 1728, कैंसिल आउट। दैट मीन्स डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा 258, तो यहाँ लिखेंगे 258। अब आंसर का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हाउ मैनी एनवेलप्स कैन बी मेड, देयरफॉर 258 एनवेलप्स कैन बी मेड। 258 envelopes can be made, ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। A square carpet of side 8 meter is laid on its floor. Find the area of the floor which is not carpeted. तो यहां पर एक रूम है जिसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, उस पर एक स्क्वायर कारपेट लेड किया गया है, बिछा दिया गया है। तो ये बताना है कि रूम के फ्लोर का कितना एरिया कारपेटेड नहीं है, कितने एरिया में कारपेट लेड नहीं है, कारपेट नहीं बिछाई गई है। यहां पर रूम का एरिया और कारपेट का एरिया फाइंड करेंगे। तो रूम का एरिया कारपेट के एरिया से जितना ज्यादा है उतने एरिया पे कारपेट लेड नहीं है, दैट मीन्स कारपेट उतने एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है, तो उतना ही एरिया नॉट कारपेटेड होगा। तो दोनों का एरिया फाइंड करना है और फिर रूम के एरिया में कारपेट के एरिया को सबट्रैक्ट कर देना है, तो पता चल जाएगा कितना एरिया ऐसा है जहां पर कारपेट नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। लेंथ ऑफ द रूम 12.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम 8 मीटर, वाइड दिया, दैट मीन्स हम विड्थ भी लिख सकते हैं, ब्रेथ भी लिख सकते हैं। तो रूम की लेंथ और ब्रेथ दी है, तो इस रूम के फ्लोर का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ रूम, यहां भी हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू दी है 12.5 मीटर और ब्रेथ है 8 मीटर, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 12 8 जा 96 प्लस 4 100, और ये 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है तो ये लगा देंगे, ये मीटर स्क्वायर 100.0 मीटर स्क्वायर। तो 100, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, हम लिख सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर। डेसिमल पार्ट में केवल 0 है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही हम कारपेट का एरिया फाइंड करते हैं, पर कारपेट क्या है, स्क्वायर शेप में है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट लिखेंगे 8 मीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, देयरफॉर एरिया ऑफ द कारपेट इक्वल टू होगा साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 8 इंटू 8, और यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर। ये कारपेट का एरिया है, कारपेट इतने एरिया पे बिछा हुआ है, लेड है, जबकि रूम के फ्लोर का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। रूम का एरिया, तो फ्लोर का एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ फ्लोर इज मोर देन द एरिया ऑफ कारपेट। तो यहाँ पर फ्लोर का जो एरिया कारपेट से के एरिया से ज़्यादा है उतना एरिया जो है कारपेटेड नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस एरिया ऑफ द कारपेट।
एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस एरिया ऑफ द कारपेट। तो ये डिफरेंस आएगा, उतना एरिया फ्लोर का कारपेटेड नहीं होगा। अब यहां पर एरिया ऑफ फ्लोर क्या है 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 लिखेंगे, और माइनस एरिया ऑफ द कारपेट कितना है 64। दोनों ही मीटर स्क्वायर हैं तो कॉमन, तो ब्रैकेट के बाहर कॉमनली हम मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 36 मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर। तो आंसर का स्टेटमेंट बनाना चाहे तो लिख सकते हैं हेंस 36 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर इज नॉट कारपेटेड। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अ लैन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन है, एक रास्ता है, तो लेंथ दी हुई है 150 मीटर लॉन्ग, विड्थ दी हुई है, इसमें ब्रिक्स लगाने हैं, इसको पेव करना है ब्रिक्स से। इस तरह से बहुत सारे ब्रिक्स लगेंगे। तो पूछा कितने ब्रिक्स लगेंगे अगर इसे कंप्लीटली पेव करना है। तो इसके लिए हम पूरे लाइन का एरिया फाइंड करेंगे और एक ब्रिक का एरिया फाइंड करेंगे, और पूरे लाइन के एरिया को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ ऐसे कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कितने ब्रिक्स रिक्वायर है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइन में या पाथ को हमें पेव करना है ब्रिक्स से, तो पाथ का एरिया और डिवाइड कर देना है ब्रिक्स के एरिया से। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि लेंथ और विड्थ पाथ की जो है मीटर में दी है, जबकि ब्रिक्स का मेजर सेंटीमीटर में दिया है। तो या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लें या दोनों को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। इस केस में हम क्या करेंगे, लाइन और ब्रिक्स दोनों के ही डायमेंशंस को हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो लेंथ ऑफ द लाइन 150 मीटर, अब ब्रिक्स का मेजर सेंटीमीटर में दिया है इसलिए इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 150 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी 15000 सेंटीमीटर, 15,000 सेंटीमीटर। ऐसे ब्रिथ 9 मीटर दिया हुआ है तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, दैट्स वाई 9 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो लाइन की ब्रिथ क्या आएगी 900 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रिथ। देयरफॉर एरिया ऑफ द लाइन इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ। लेंथ की जगह 15,000, ब्रिथ की जगह 900, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में, तो एरिया भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 9 जा 135 और 30 प्लस 2 5 50 हो गए, 30 ये 1 2 3 और ये 20। ऐसे ही 1 ब्रिक का एरिया फाइंड करेंगे। हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ब्रिक क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ ब्रिक इक्वल टू होगा 22.5 मल्टीप्लाइड विथ 7.5, और दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे एरिया को। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रफ में अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी डेसिमल पॉइंट हटाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 5 का मल्टीप्लाई 225 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 1125। फिर 7 10th प्लेस का डिजिट है तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 1st प्लेस पे कुछ नहीं लिखेंगे, 10th प्लेस से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 का 7 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। अब इसे ऐड करेंगे 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 5 6 और ये 1। डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 16,875 लिखते हैं। यहाँ पर डेसिमल प्लेस में 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, 2 डिजिट्स हो गए। पर राइट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो एरिया ऑफ द लाइन
मालूम है, एरिया ऑफ ब्रिक भी मालूम हो गया है। अब इस लाइन को पेव करने के लिए कितनी ब्रिक की ज़रूरत होगी, तो लाइन के एरिया को डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ ए ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ द लाइन अपॉन एरिया ऑफ अ ब्रिक। एरिया ऑफ लाइन को डिवाइड करना है एरिया ऑफ अ ब्रिक से। एरिया ऑफ लाइन 1,35,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अपान में 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो इसका हम डेसिमल पॉइंट हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 135 के बाद 5 जीरो है तो 7 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे और नीचे डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 16,875। अब इसे डिवाइड करके देखेंगे और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, तो अलग से डिवाइड करेंगे। इसके लिए 16,875 से डिवाइड करेंगे तो ये एडजा आएगा 1,35,000, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 4 जीरो है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें 4 जीरो प्लेस करना होगा, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 80,000 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 80,000। Hence 80,000 bricks are required. Question number 8. A room is 13 meter long and 9 meter broad. Find the cost of carpeting the room with a carpet 75 centimeter broad at the rate of ₹65 per meter. तो एक रूम है जिसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, उस पर एक कारपेट बिछाना है, तो रूम के फ्लोर का जो भी एरिया होगा उतने ही एरिया का हमें कारपेट वहां पर बिछाना होगा। अब कारपेट की ब्रिथ दी हुई है, कारपेट की लेंथ नहीं मालूम है, और रेट क्या दिया है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग का, ₹65 पर मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट ₹65 होगा। इस हिसाब से हमें पूरे कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि कितनी लेंथ का कारपेट लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। लेंथ ऑफ द रूम 13 मीटर, ब्रिथ 9 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द रूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रिथ, शॉर्ट में L इंटू बी लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिखना चाहें तो लेंथ इंटू ब्रिथ लिखेंगे। लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ की वैल्यू दी है 13 मीटर एंड ब्रिथ दिया है 9, और दोनों ही वैल्यू मीटर में है, तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। 13 9 जा 117 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ द रूम, और यही होगा कारपेट का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ द कारपेट भी क्या होगा, जितना रूम का एरिया, दैट मीन्स 117 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर कारपेट की ब्रिथ दी हुई है, हम लिखेंगे यहां पर ब्रिथ ऑफ द कारपेट इक्वल टू दिया है 75 सेंटीमीटर, तो इसे भी मीटर में बदल लेते हैं। अब 75 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 0.75 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर की जो भी वैल्यू होती है उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.75 मीटर आएगा। अब कारपेट की लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि रेट जो दिया है कारपेटिंग का वो ₹65 पर मीटर दिया है, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी कारपेट की। एरिया मालूम है, ब्रेथ मालूम है, इजीली हम कारपेट की लेंथ फाइंड कर पाए। लेंथ ऑफ द कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट अपॉन ब्रेथ। एरिया ऑफ द कारपेट दिया है 117 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ दिया है 0.75 मीटर। यहां पर डिवाइजर में 0.75 है, ये डेसिमल का नंबर है, 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर ये बनेगा 11,700 और अपान में आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। मीटर तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ मीटर। तो ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमें कारपेट की लेंथ पता चल जाएगी। अब ये डिवाइड करते हैं, 75 बन जाए 75, 175 में 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो 42 आएगा,
नेक्स्ट स्टेप में एक जीरो ऊपर से नीचे आएगा तो ये बनेगा 420। अब 75 5 जा, ये होगा 375। 420 में 375 सब्ट्रैक्ट होगा तो 45 आएगा। अब ये लास्ट जीरो है, ये भी नीचे आ जाएगा। अब 75 6 जा, ये हो जाएगा 450 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आएगा 156। तो यहां हम लिखेंगे 156 मीटर। ये क्या होगी लेंथ ऑफ द कारपेट, कारपेट की लेंथ होगी। अब यहां पर रेट क्या दिया है कारपेटिंग का, ₹65 पर मीटर। दैट मीन्स 1 मीटर का कॉस्ट है ₹65। यहाँ रूम में जो कारपेट है उसकी लेंथ क्या है 156 मीटर। तो 1 मीटर का ₹65 है तो 156 मीटर का हम फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू ₹65 है तो कॉस्ट ऑफ 156 मीटर क्या होगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 156 मीटर इक्वल टू होगा 65, जो भी 1 मीटर का कॉस्ट है दैट मीन 65, इसका 156 टाइम कर देंगे और ये वैल्यू रुपए में है तो ये भी रुपए में ही होगी, रुपए। तो 5 6 जा 30 का जीरो, 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 8 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। यहाँ पे क्रॉस कर देंगे या जीरो लिख देंगे। फिर 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 33 का 3 कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9। अब इसे ऐड करेंगे 0, 8 6 14 का 4 1 कैरी, 7 3 10 प्लस 1 11 का 1 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10,140। तो यहाँ हम लिखेंगे 10,140। ये प्रोडक्ट होगा, रुपए लिखा है तो रुपए लिखेंगे। हैंस द कॉस्ट ऑफ carpeting the room is ₹10,140। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ में रेशियो दिया है 5:3, उस पार्क का पेरीमीटर भी दिया है 128 मीटर। हमें उस पार्क का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे जो रेशियो दिया है, द रेशियो इन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 5:3। तो हम यहाँ पर लेंथ को 5x मीटर और ब्रेथ को 3x मीटर मान सकते। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेंथ और ब्रेथ को इस तरह से ले लेते हैं जिससे उनका रेशियो 5:3 आए। तो अगर लेंथ को हम यहाँ पे 5x मीटर और ब्रेथ को 3x मीटर मान लेते हैं तो उनका रेशियो भी 5:3 होगा। तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 5x मीटर्स। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 5x मीटर, देन द ब्रेथ ऑफ द पार्क क्या होगा 3x मीटर, देन द ब्रेथ इक्वल टू 3x मीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 128 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू 128 मीटर। अब यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा, पार्क रेक्टेंगुलर है इसलिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इक्वल टू 128 मीटर। 2 की जगह 2, लेंथ को हमने क्या माना है 5x मीटर तो 5x लिखेंगे प्लस ब्रेथ 3x। मीटर कैंसिल कर देंगे यहाँ से और यहाँ से भी मीटर को कैंसिल कर देंगे तो ये 128 हो। तो 2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट के अंदर 5x और 3x, इन्हें ऐड करेंगे तो 8x आएगा। दैट मीन्स 2 इंटू 8x इक्वल टू 128। दिस इम्प्लाइज x के साथ 8 और 2 दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये अपान में 2 इंटू 8 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 128 को तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 64। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64। और 8 से डिवाइड करेंगे 64 को तो 8 आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ये x की वैल्यू है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगी 5x मीटर। x तो आ चुका है तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
लेंथ of the rectangular park इक्वल टू 5x मीटर था, तो 5 इंटू 8 मीटर, दैट मीन्स 5 8 जा 40 मीटर ये पार्क की लेंथ होगी। और ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ इक्वल टू 3x मीटर माना था, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 आ चुकी है, 3 इंटू 8 मीटर, दैट मीन्स 24 मीटर। तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम चल गई है। और क्वेश्चन में कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, तो पार्क का एरिया हम इजीली फाइंड कर लेंगे। रेक्टेंगुलर पार्क या किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ द पार्क इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ की जगह हम लिखेंगे 40 और ब्रेथ की जगह 24। दोनों मीटर में है तो एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। अब 40 इंटू 24 करते हैं तो वैल्यू आती है 960 और ये मीटर स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। सो गिवन रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा 960 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर, one is a square of side 64 meter and the other is a rectangle of length 70 meter. Find the breadth of the rectangular plot. Which plot has the greater area and by how much? क्वेश्चन में दिया गया है कि टू प्लॉट्स दिए हुए हैं जिनके सेम पेरीमीटर है, दोनों के पेरीमीटर सेम है। एक प्लॉट स्क्वायर शेप में है जिसकी साइड 64 मीटर और दूसरा प्लॉट एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 70 मीटर दी हुई है। तो रेक्टेंगल प्लॉट का हमें ब्रेथ फाइंड करना है और फिर उसके बाद दोनों ही प्लॉट, दैट मीन्स स्क्वायर प्लॉट और रेक्टेंगल प्लॉट, दोनों का एरिया फाइंड करना है और बताना है कि इसका एरिया ग्रेटर है और कितना ज्यादा ग्रेटर है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर प्लॉट की साइड दी हुई है तो इससे पेरीमीटर निकाल लेंगे और जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही रेक्टेंगल प्लॉट का पेरीमीटर होगा। तो आइए पहले स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 64 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट क्या होगा? 4 इंटू साइड, ये फार्मूला है। 4 की जगह 4, साइड की जगह 64 मीटर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 256 और ये मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे। दैट मीन्स स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर 256 मीटर है। यहाँ पे कहा गया था दोनों ही प्लॉट के पेरीमीटर सेम है, तो स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर 256 मीटर है। दैट मीन्स रेक्टेंगल प्लॉट का पेरीमीटर भी क्या होगा? 256 मीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 70 मीटर, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और रेक्टेंगुलर प्लॉट की विड्थ नहीं दी हुई है तो ब्रेथ हम x मीटर मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही प्लॉट्स के पेरीमीटर सेम है। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, तो वो तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 256 मीटर, ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। नाउ अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, लेंथ की जगह 70 मीटर लिखा हुआ है तो 70, ब्रेथ x मीटर हमने मान लिया तो x लिखेंगे और यहाँ 256 मीटर है तो यहाँ का भी मीटर नहीं लिखते हैं और यहाँ का भी मीटर नहीं लिखते हैं, मीटर मीटर कैंसिल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 पूरे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा? 70 प्लस एक्स इक्वल टू 256 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज 70 प्लस एक्स इक्वल टू 256 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या होगी? 70 यहाँ पर प्लस का 70 था, यहाँ ऐड हो रहा था, वहां जाके इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर आएगी 58।
देयरफॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ इक्वल टू, ब्रेथ हमने माना था x मीटर, तो x की वैल्यू 58 आ गई, दैट मीन्स 58 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है दोनों ही प्लॉट में किसका एरिया ग्रेटर है और बाय हाउ मच, कितना ग्रेटर है, तो दोनों के ही एरियाज फाइंड करने होंगे। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सो वैल्यू ऑफ लेंथ इज 70 मीटर, सो वी राइट हियर 70 एंड ब्रेथ इज 58 मीटर, तो वी राइट हियर 58। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में दी हुई हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 4060 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क नहीं, ये प्लॉट है, तो यहाँ प्लॉट लिखेंगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट होगा साइड इंटू साइड, जो भी स्क्वायर प्लॉट की साइड, जो भी स्क्वायर प्लॉट की साइड होगी उसका साइड से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया आ जाएगा। साइड क्वेश्चन में दी हुई है 64 मीटर, दैट मीन्स 64 इंटू 64, और एरिया है तो यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ पर 4096 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है, क्योंकि 4096 मीटर है, ये 4060 मीटर स्क्वायर है, और पूछा है कितना ज़्यादा है, तो ये फाइंड कर लेते हैं। सो डिफरेंस ऑफ द टू एरियाज, डिफरेंस ऑफ टू एरियाज, डिफरेंस ऑफ द टू एरियाज, दोनों एरियाज का डिफरेंस क्या होगा, 4096 मीटर स्क्वायर माइनस 4060 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 36 मीटर स्क्वायर। अब आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पर कि स्क्वायर प्लॉट का एरिया ग्रेटर है बाय 36 मीटर स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया than that of the rectangular plot. बाय 36 मीटर स्क्वायर। ये लाइन लिखना कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा आपको। ये बताना है हमें कि स्क्वायर प्लॉट का एरिया ग्रेटर है रेक्टेंगुलर प्लॉट से बाय हाउ मच, बाय 36 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।